Now I'm going to share picture with you, page number 16. Kindly open page number 16, everyone. And I'm going to give you review of first of all addition, then I will explain subtraction. Jafar, please don't raise your hand. First of all, take the review. You all know that I always talk to you, even though at the end of the lecture I will discuss each and everything. So first of all, cooperate with your teacher and take the review of addition. सही है? Now I'm going to explain question number 9, which I have given you as homework, but still I am going to explain question number 9. Look at your screen, please. First of all, you have to write 6. Okay, I told you, if you see there is no decimal with the number, where is the decimal? Decimal कहाँ होता है फिर? Can anyone reply me, please? Where is the decimal? Can anyone tell me? Teacher, decimal end में होता है. Very good. Decimal is at the end of the digit. सही है? Decimal हमेशा आखिर में होता है if we are not seeing any decimal with the number. Got it? So I am writing. So I am placing decimal point at the end of the number. सही है? Now I told you, you have to write decimal beneath decimal. Walaikum assalam. Now you have to write decimal beneath decimal. Okay. So now first of all, I am placing decimal point beneath decimal. सही है? Then you have to arrange the number with respect of right hand side and left hand side. So first of all, I am writing 8, 9 because I am filling my right hand side. Then I am going to complete my left hand side. So I am writing 2, 3, 1. Beta, listen to me first. I know, beta, you have done this, but I am going to give you review right now, okay? And I told you, if you see any empty place, you have to fill that empty place with 0. अब देखिए आप सब यहाँ 0 को ऐड कर देंगे. Zero, 0, 0, 0, and we are doing addition. Now we have to solve. Now we have to solve. 0 plus 9 is equal to 9. 0 plus 8 is equal to 8. Now turn for decimal. I am writing decimal here. Then 6 plus 2 is equal to 8. 0 plus 3 is equal to 3. 0 plus 1 is equal to 1. This is your answer of question number 9. Okay. मरियम, अब आप ना जरा ख्याल से मुझे सुनिएगा जो मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर रही हूँ, क्योंकि ये लास्ट टाइम होगा जो मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ डेसिमल, और डेसिमल की कोई आपको रिवीजन क्लास नहीं मिलेगी. मैं सिर्फ फ्रैक्शन की एक रिवीजन क्लास अरेंज करूंगी. ये पेज नंबर 16 को मैंने अपने कॉपी में चिपका दी है. Does it matter? So you have to solve it. Okay. Now student, I am explaining the last time of this question. Kindly look, question number 8. This is of subtraction question. So beta Dua, maybe there is a problem at your ends. Other student is listening. Other students are listening right now. So beta, kindly check your network as well as your device. Okay. Now student, I am going to explain question number 8, and Mariam, please
ध्यान से सुन लीजिए, because we have only 12 minutes remain for the maths block. So now listen, check it, Dua Khan, at your end, because other students are listening me properly. Dua Khan, rejoin me. Leave the class and rejoin. Student, look, I am going to explain question number 8. सही है? First of all, we have to write 20. मरियम, आप जरा ध्यान से सुनिएगा क्योंकि लास्ट टाइम मैं समझा रही हूँ. 20, okay? I told you, when you see there is no decimal with the number, so where is the decimal? Decimal is at the end of the number. So I am placing decimal over here. Okay? Okay? Now, subtraction summer. sorry, this is not fraction, Mariam. We are doing addition and subtraction. Yeah, this is subtraction. Yes, I know. What is the difference between there is a huge difference between subtraction and addition, but the methods are same ना. Method तो same होता है. Now listen to me, student. Subtraction, when you are going to do subtraction, so first of all you must keep in your mind, if Miss Ikra is giving you 3 terms, अगर आपको 3 terms दी जाएंगी, काइंडली आप देखिएगा स्क्रीन पर, मैं हाईलाइट कर रही हूँ टर्म्स किसे कहते हैं. सही है? दिस इज फर्स्ट टर्म, दिस इज सेकंड एंड दिस इज थर्ड. ये 3 टर्म्स हैं आपके पास. बेटा यहाँ देख लीजिए नाबिया, काइंडली लुक एट योर स्क्रीन. आपके पास 3 टर्म है. सही है? हम पहले शुरू की 2 टर्म को क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे. जब हम 2 टर्म को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, उसके बाद हम थर्ड टर्म को क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे. दोबारा सुन लीजिए, बहुत क्लियर वर्ड्स में मैं बोल रही हूँ कि हमारे पास अगर टर्म मोर देन 2 होती है तो पहले हम करते हैं फर्स्ट 2 को सब्ट्रैक्ट, देन हम थर्ड 1 को सब्ट्रैक्ट करते हैं आफ्टर गेटिंग द आंसर फ्रॉम फर्स्ट 2 सब्ट्रैक्शन. ओके, अब जरा ख्याल से सुनिएगा. हम पहले सब्ट्रैक्ट करेंगे दिस नंबर विद दिस नंबर. ओके, इन 2 को हम पहले सब्ट्रैक्ट करेंगे. पहले मैंने 20 लिखा और मैंने आपको बताया था कि जब आपके पास कहीं पर भी डेसिमल नहीं होता तो एट द एंड ऑफ द नंबर आपके पास डेसिमल होता है. टीचर ने डेसिमल प्लेस कर दिया. फाइन. अब हम अपने सेकंड नंबर को लिखेंगे 20 के नीचे. आई टोल्ड यू, जब भी हम सब्ट्रैक्शन और एडिशन करते हैं तो हम हमेशा डेसिमल के नीचे डेसिमल लिखते हैं. तो सबसे पहले देखिए मैं इकरा डेसिमल प्लेस कर रही हूँ. देखिए सबसे पहले मैंने डेसिमल लिखा. सही है? फिर उसके बाद हम अपनी राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड को फिल अप करेंगे. तो हमारी राइट हैंड साइड पर हमारे पास आ रहा है 8. देखिए टीचर ने 8 लिखा पहले. फिर हमारे पास आ रहा है 14 लेफ्ट हैंड साइड पर. तो देखिए टीचर ने लिखा 14. यहाँ तक आई होप सबको क्लियर समझ आ गया होगा. फिर नेक्स्ट स्टेप मैंने आपसे कहा था बेटा एम्प्टी स्पेस. आप दोनों को कंपेयर करोगे, जहां पर भी आपको एम्प्टी स्पेस नजर आ रहा है उसे फिल अप करना कंपलसरी है. तो देखिए 8 हमने जहाँ लिखा हुआ है उसके ऊपर वाला स्पेस क्या है? एम्प्टी है. अगर आपके पास ऊपर वाला या नीचे वाला स्पेस एम्प्टी है किसी डिजिट के, तो उसे फिल अप करोगे आप बाय राइटिंग 0. आप क्या कर दोगे? 0 लिखकर उसे फिल अप कर दोगे. फाइन. नाउ वी आर डूइंग सब्ट्रैक्शन. लुक एट योर स्क्रीन. हमें पता है कि हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन हमेशा कहाँ से करते हैं? राइट हैंड साइड से करते हैं. सही है? अब राइट हैंड साइड से हम सब्ट्रैक्ट करना शुरू करेंगे तो क्या आप मुझे बताएंगे कि 0 में से 8 माइनस हो सकता है? टेल मी. 0 में से 8 माइनस हो सकता है? नो. सो वी नीड टू बोरो. हमें जरूरत है कि हम क्या करें? बोरो करें. सही है? बोरो. तो मैं बोरो करने के लिए अपने बिल्कुल पहले वाले डिजिट के पास जाऊंगी जो हमारे बिल्कुल क्लोज है, जो कि क्या है हमारे क्लोज? 0. क्या मैं इस 0 से कुछ बोरो कर सकती हूँ? टेल मी. No. नहीं. 0 has no value. 0 has no value. 0 has nothing in its pocket. 0 के पास कुछ भी नहीं है उसकी पॉकेट में.
तो अब मैं किससे बोरो करूंगी? 2 से। देखिए किस तरह बोरो करते हैं, काइंडली लुक। 2 से मैंने बोरो करा, 2 से मैंने 1 बोरो करा और वो मैंने 0 को दे दिया। सही है। तो 2 के पास कितने बचे? 2 से मैंने 1 ले लिया तो 2 के पास 1 बचा। तो मैंने यहाँ एक छोटा सा 1 लिख दिया। सही है कि 2 के पास अब 1 है। सही है। अब ये जो 0 के पास 1 आ गया ना, दैट मीन्स दिस इज 1 0 10। ओके, दिस इज 1 0 10। अब 10 में से 1 मैं बोरो दूंगी किसे? नेक्स्ट 0 को। मैंने यहाँ दे दिया 0 को 1, तो ये बन गया 1 0 10। लेकिन 1 0 10 से मैंने 1 रुपी ले लिया, तो बताइए 1 0 10 के पास कितने रुपए बाकी हैं? 9। 9। So I am writing 9 over here. Got it? So अब देखिए 10 में से 8 में माइनस कर सकती हूँ? Tell me. Can I subtract 8 from 10? Yes. So after deducting 8 from 10, so what I have remain? 2. So I am writing 2 over here. And after 2, we are seeing decimal point. So I am placing decimal point first. Now we have to subtract 4 from 9. We have to subtract 4 from 9. 4 को subtract करेंगे 9 में से. So what number remain? बेटा क्या remain है? 5. So I am writing 5 over here. Okay. Subtract 1 from 1. What remain? जब मैं 1 में से 1 माइनस करूंगी, so what remains? 0. So I am writing 0 over here. ये देखिए अभी हमारी 2 टर्म एक दूसरे के साथ सब्ट्रैक्ट हुई है। थर्ड वन टर्म हमारी बाकी है, that is 0.018. Got it? क्या टीचर ने आपको पहले ही समझा दिया था कि हमेशा सब्ट्रैक्शन में, मरियम ये आपको सब्ट्रैक्शन समझ नहीं आया? प्लीज मुझे बताएंगे आप, ये आपको सब्ट्रैक्शन समझ नहीं आया जो मैंने अभी समझाया है, या जो मैं अब बोल रही हूँ मुझे तो आता है, या जो मैं अब बोल रही हूँ आपको वो समझ नहीं आ रहा है? टीचर ये सिंपल फ्रैक्शन है। ये फ्रैक्शन नहीं है, सब्ट्रैक्शन है। मुझे फ्रैक्शन क्यों सुनाई दे रहा है? ओके, राइट नाउ प्लीज प्लीज मरियम कंसंट्रेट कीजिए। मैंने कहा था कि हमने फर्स्ट 2 टर्म को पहले सब्ट्रैक्ट करना है, जो कि हमने कर लिया। इट्स वेरी इजी, वेरी इजी। आप सब ने मुझे क्वेश्चंस के जवाब दिए हैं जो मैं आपसे पूछ रही थी। सही है। अब मैंने कहा अब हम थर्ड टर्म को क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे। थर्ड टर्म मैंने हाईलाइट करी है विद ब्लू पेन, आपको नजर आ रही है थर्ड टर्म, जो कि हमारी क्या है? 0.018 को हमने क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है। कैसे करना है देखिए। सबसे पहले क्या करेंगे? पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखेंगे। आप कोशिश तो करो समझने की, इसके बाद में एक और क्वेश्चन करूंगी सॉल्व। पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखा, सही है। फिर हम क्या करेंगे? अपनी राइट हैंड साइड को फिलअप करेंगे, क्योंकि पॉइंट के बाद राइट हैंड साइड की तरफ नंबर्स आ रहे हैं हमारे पास। स्टॉप टाइपिंग मैसेजेस स्टूडेंट, आई एम नॉट आस्किंग एनीथिंग फ्रॉम यू राइट नाउ, सो स्टॉप टाइपिंग। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट 0. 0 के बाद आपके पास क्या आ रहा है? 1, और 1 के बाद आपके पास क्या आ रहा है? 8. यहाँ तक आप सीख लीजिए बेटा, यहाँ तक आप लर्न कर लो, फिर उसके बाद में सब्ट्रैक्ट करना सिखाऊंगी। आपके टीचर ने फिर आपको क्या कहा था कि आप चेक करोगे एम्प्टी स्पेस। नाउ यू हैव टू चेक द एम्प्टी स्पेस। जितने भी आपको एम्प्टी स्पेस नजर आ रहे हैं उसे अब हम क्या करेंगे? फिल अप करेंगे। वी हैव टू फिल अप ऑल द एम्प्टी स्पेस। ओके, सो वेयर you are seeing the place is empty, tell me कहाँ प्लेस empty है जहां मुझे 0 fill up करना है? Before decimal. Before decimal? नहीं, ये कोई राइट आंसर नहीं है। मैं डिजिट बताओ कि टीचर इस डिजिट के ऊपर। हसन रजा, स्टॉप यूजिंग स्क्रीन। आपने बिल्कुल सही बताया। ओके, दुआ खान स्टॉप यूजिंग बेटा। अब मुझे बताइए कि टीचर इस डिजिट के ऊपर या नीचे आपने 0 लिखना है, इस तरह मुझे बताइए, जल्दी से बताइए। टीचर नीचे लिखना है 5 and 0। ओके, सबसे पहले कहा हाँ हसन ने कि टीचर 5 के नीचे और 0 के नीचे। फाइन।
और कोई डिजिट्स नजर आ रहे हैं जिसके ऊपर या नीचे हम 0 ऐड करेंगे? नो। नो, लुक एट योर स्क्रीन। बेटा देखो, स्क्रीन नजर आ रहा है, चेक स्क्रीन। मरियम बताइए कहाँ है एम्प्टी स्पेस जो हमें फिलअप करना है? स्पेस 8 के ऊपर है। वेरी गुड, 8 के ऊपर और 1 के ऊपर। 1 के ऊपर, वेरी नाइस, बिल्कुल सही। 1 के ऊपर और 8 के ऊपर हमारा एम्प्टी स्पेस है जो कि हम फिल करेंगे विद 0। यहाँ तक होप सो सबको क्लियर हो। हम कर क्या रहे हैं? सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, सही है। अब हम सब्ट्रैक्शन करेंगे जैसे कि आपने अपनी अर्ली क्लासेस में भी सीखा हुआ है और ईयर 4 में भी सीखा है। कैन एनीवन टेल मी, is there any possibility that I have to subtract 8 from 0? नो। There is no. टीचर वी हैव टू बोरो। कंफ्यूजिंग था जब आपने एक्सचेंजिंग किया ना 0 के साथ और फिर 9 We need to borrow. We need to borrow. Okay. बहुत ही क्लोज डिजिट जो है उससे बोरो करते हैं, लेकिन फर्स्ट 0 के बराबर में ही सेकंड 0, सो इट इज पॉसिबल दैट आई हैव टू बोरो समथिंग फ्रॉम 0। नो, सो वी हैव टू बोरो फ्रॉम 2। हमें किससे बोरो करना पड़ेगा? 2 से। ये 10। Okay, it's 11, 6, 8, 9. Kindly write your correct name, otherwise I will remove from my class. This is last time telling you. Write your own name. This is not funny, okay? You are making me angry. Kindly write your own name. ये 11 और बेटा वेट, हम कर रहे हैं। आपसे मैं पूछ के करूंगी ताकि आपको आए। Now we are taking borrow 1 rupee from 2. 2 से हमने 1 रुपी बोरो करा तो 2 के पास 1 रिमेन रहा। अब हम 1 किसे दे देंगे? 0 को। तो 0 क्या हो गया? 1 0 10। 1 0 10 हो चुका है। तो ये सब्ट्रैक्शन में होता है, ये मेरी बात याद रखिएगा। 1 0 10 से हमने 1 रुपी बोरो करके 0 को दिया, तो ये भी टीचर आप कौन सा वाला करा रही हैं? टीचर आप कौन सा वाला करा रही हैं? ये क्वेश्चन नंबर 8 है, सही है। अब हमने 1 0 10 से 1 रुपी बोरो किया तो 1 0 10 के पास कितना बचा बच्चों? 9। वेट मरियम, टेल मी 9 कैसे आया? आई एम टेलिंग यू मरियम। 1 0 10 से हमने 1 रुपी बोरो किया, सही है, 0 को देने के लिए। दैट इज वाई जब हमने 10 से 1 रुपी बोरो किया तो 10 के पास बेटा कितने रुपीस बचे? 9 रुपीस बचे। ओके, 9 रुपीस रिमेन है तो हमने टॉप पर लिख दिया और 0 को हमने 1 बोरो कर दिया। जी बोलिए अनाबिया। मिस ये तो बस फ्रैक्शन है, बस इसके अंदर वो 0 पॉइंट्स मतलब सिंपल। हाँ सिंपल है अनाबिया, दिस ऑल आर सिंपल क्वेश्चन। दिस इज मिस मतलब जैसे हमारी सब्ट्रैक्शन। ऑफ कोर्स बेबी, यू गॉट माय पॉइंट। ये सब सेम है सिवाय डेसिमल का डिफरेंस है यहाँ पर, और कुछ नहीं है, सही है। अंडरस्टैंड। ओके, वेरी गुड। नाउ वी हैव टू सब्ट्रैक्ट। टीचर मेरे पास तो जगह ही नहीं बची, दूसरा क्वेश्चन आ गया। अच्छा, क्वाइट। अब मुझे सुनिए मरियम, सुन लीजिए, मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ। हमें बोरो करना था 1, किसे देना था? बिल्कुल लास्ट वाले 0 को। तो मैंने 1 0 10 से 1 रुपी बोरो किया, उधार लिया। 1 0 10 से 1 रुपी मैंने उधार लिया। तो बताइए 10 के पास कितने रुपीस बचे मरियम? 9। तो बेटा मैंने वो 9 टॉप पर लिख दिया कि 1 0 10 ने 1 रुपी बोरो कर दिया 0 को। अब हमारे पास देखिए जी, अच्छा पहले ये तो डन करने दो। 1 0 10 now yes now we have to subtract 8 from 1 0 10. so which number remains बेटा? अब क्या बाकी है हमारे पास? only 2. so हम यहाँ पर first of all we have to write 2 over here. सही है। now we have to subtract 1 from 9. what will be your answer? please tell me. मरियम मुझे आंसर दो।
9 में से जब हम 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, so what will be your answer? 8. We are going to write 8. Now we have to subtract 0 from 1. 0 को 1 में से माइनस करना है, तो हमारे पास क्या आंसर होगा बेटा? 1. Very good. 1. Now I have to place decimal point. Okay. So we have to subtract 0 from 5. 0 को जब हम 5 करते हैं, answer is 05.182. and when we subtract 0 from 0, what will be your answer? 0. This is your answer number 8. Okay. Miss, हाँ बोलिए मेरे बच्चे, बोलिए। जब Miss, तक आप answer is 05.182. Miss, I Yes. can't understand subtraction. वेरी गुड, वेरी गुड। यानी अर्ली क्लासेस में सब्ट्रैक्शन आप लोगों के वीक थे। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 12 कर रहे हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 12 कर रहे हैं। Teacher, I understand. ओके, वेरी गुड। मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 8 करवा दिया, क्वेश्चन नंबर 6 भी निकल के क्वेश्चन नंबर 9 करवाया। अब मैं लास्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रही हूँ, उसके बाद रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन विल बी योर होमवर्क। ओके टीचर, आप 9 फिर से समझा देंगी? ओके टीचर। बेटा 9 में दोबारा अभी नहीं समझा सकती, क्योंकि मैं समझा चुकी हूँ। रिकॉर्डिंग वीडियो देखिएगा, सही है? क्योंकि हमें कुछ अपने टास्क पूरे करने पड़ते हैं। यू नो ऑन मंडे यू विल हैव योर एग्जाम्स। मंडे को आपके एग्जाम्स होंगे, तो काइंडली आप कोऑपरेट करो। अब मैं क्वेश्चन नंबर 12 एक्सप्लेन कर रही हूँ। लुक एट योर स्क्रीन प्रॉपरली। जो भी आपके मिसकंसेप्शन है फ्रॉम दिस क्वेश्चन यू हैव टू क्लियर। ओके, अब आपको इस क्वेश्चन से अपने तमाम मिसकॉन्सेप्ट क्लियर करने होंगे, क्योंकि ये लास्ट क्वेश्चन है जो मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। सो काइंडली लुक एट योर स्क्रीन। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 12 विच आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन राइट नाउ। सब्ट्रैक्शन बिल्कुल वैसा ही है जैसा आपने अर्ली क्लासेस में किया हुआ है। जस्ट इसमें डिफरेंट क्या है, यहाँ पर आपको डेसिमल पॉइंट नजर आ रहा है। डेसिमल पॉइंट कुछ ही नहीं कर रहा हो, ये तो आपका फ्रेंड है। यहाँ आपको डेसिमल पॉइंट नजर आ रहा है, वहीं पर उसी जगह पर आप भी डेसिमल पॉइंट को प्लेस कर दीजिए। सो आई टोल्ड यू, हम सबसे पहले चेक करेंगे एम्प्टी स्पेस। इस क्वेश्चन में सबसे पहले आप क्या चेक करोगे? एम्प्टी स्पेस। एम्प्टी स्पेस बेटा हमें कहाँ कहाँ नजर आ रहे हैं, मुझे बताइए। टीचर, above 1 2 3 4। वेरी नाइस, बिल्कुल सही। मैं यहाँ क्वेश्चन भी लिख रही हूँ ताकि आपको क्लियर नजर आए और मैं समझा पाऊँ। मुझे सबकी आवाज अटक के आ रही है। तो बेटा आप समझोगी तो आएगा ना। मुझे समझ नहीं आ रहा मरियम एंड इनाया, आप कॉन्स्टेंटली एक ही चीज कह रही होते हो, समझ नहीं आ रहा, जबकि दूसरे बच्चे भी इसी क्लास में हैं और वो भी मुझसे पढ़ रहे हैं और वो भी मुझे बता रहे हैं कि टीचर समझ आ रहा है, और वो बच्चे मुझे प्रॉपरली सुन रहे होते हैं। आप लोग कोशिश तो करो मुझे सुनने की, और मेरी बातें तो आप सुनो, तभी तो चीजें समझ आएंगी। मैंने अभी सिर्फ आपसे इतना कहा है, ये आपका क्वेश्चन है, सही है? क्वेश्चन आपसे कह रहा है डू सब्ट्रैक्शन, सही है? यहाँ तक मैंने अब तक कहा है, और फिर मैंने आपसे पूछा है नाउ टेल मी अबाउट एम्प्टी स्पेस। एम्प्टी स्पेस आपको कहाँ नजर आ रहे हैं? किसी डिजिट के ऊपर नजर आ रहा होगा, किसी को आपको नीचे नजर आ रहा होगा, मुझे इतना बताइए। हसन नजर आ रहा, हसन अब मुझे मरियम सबको म्यूट कर दे। अब मुझे इनाया और मरियम आप दोनों 1 2 3 4। दूसरे बच्चों को तो बहुत अच्छे से समझ आ रहा है और वो लोग मुझे जवाब भी दे रहे हैं। देखें दानियाल ने इतना लेट ज्वाइन करा और वो मुझे आंसर दे रहे हैं तमाम चीजों के। मरियम एंड इनाया, अब काइंडली आप लोग मुझसे बात कीजिए और मुझे बताइए कि वेयर इज द एम्प्टी स्पेस व्हिच वी हैव टू फिल। टेल मी। Between 1 2 3 4। Between? There is no Under between. 1 2 3 4। Under 1 You have to say teacher above or low. इस तरह बोलिए, इनके ऊपर भी और इनके नीचे भी है, सही है? Under 1 2 3 4। सही है। So first of all we have to fill this empty space. हम पहले empty space। हाँ बेटा, हमें जी के ब्लॉक भी लाजमी लेना है आज, क्योंकि जी के ब्लॉक में आपको हम काम देंगे कुछ लिखने के लिए।
यहाँ देख लीजिए। टीचर 5 बजे तक क्लास होगी। नहीं नहीं, ऑन टाइम आई विल कंक्लूड माय सेशन, डोंट वरी, ओके। अब देखिए मैंने येलो कलर से अपने एम्प्टी स्पेस को बेटा क्या किया है, फिल किया है, सही है। अब हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे, जो कि आपने अपनी अर्ली क्लासेस में किया हुआ है। सबसे पहले हम देखेंगे, हमेशा राइट हैंड साइड की तरफ से सब्ट्रैक्शन स्टार्ट होता है। मरियम एंड इनाया आप लोग सुन लीजिए, सही है। 0 we have to subtract 4 from 0. Is this possibility that we have to subtract? No. तो constantly हमारे पास नेक्स्ट 4 0 है, तो पॉसिबिलिटी है ही नहीं इन लोगों को सब्ट्रैक्ट करें। तो हम क्या करेंगे, बोरो करेंगे। और बोरो कहाँ से करेंगे, 4 से। कहाँ से करेंगे, 4 से। तो 4 3 बन जाएगा और 0 10 बन जाएगा। जी वेरी गुड। फिर मैं 10 से 1 रुपी बोरो करूंगी मरियम। नेक्स्ट 0 को 1 रुपी मैंने दे दिया, तो 10 के पास कितने बचे, 9, सही है। फिर मैंने दोबारा 1 0 10 से 1 रुपी बोरो करा, 0 को दिया, तो दोबारा मेरे पास 9 बचे। फिर मैंने दोबारा 1 0 10 से 1 रुपी बोरो किया, और यहाँ पर हमारे पास 9 बचा। और नेक्स्ट लास्ट वाला 0 हमारा क्या है, 1 0 10। 1 0 10 में से वी हैव टू सब्ट्रैक्ट 4। सो व्हाट विल बी योर आंसर, प्लीज टेल मी। मिस ये 1 0 10 कैसे बना? क्योंकि हमने 1 रुपी बोरो किया है। देखो ना, मैंने हाईलाइट किया हुआ है। मिस तो 4 9 बन 4 के जो ऊपर वाला 0 है वो तो 9 बन गया है ना। हाँ वो 9 बना। फिर देखिए तो हमने 10 नेक्स्ट वाले 0 को, 10 से सुनो क्यों मरियम, कर दी? दोबारा से सुनो मरियम, दोबारा सुनो। मैंने 4 से 1 रुपी बोरो किया और मैंने 0 को दे दिया। जब वो 1 रुपी 0 के पास गया तो वो बन गया 1 0 10। ओके ओके कहती रहो मरियम, मेरे बाद आप मुझे जवाब दीजिए, क्योंकि ये लास्ट डे है हमारा डेसिमल फ्रैक्शन का। उसके बाद मैं खत्म कर रही हूँ सब। ओके टेल मी मरियम, रिप्लाई मी, सही है। फिर जब मैंने 1 0 10 से नेक्स्ट 0 को 1 रुपी बोरो कर दिया, तो जो मेरा प्रीवियस 1 0 10 था उसके पास क्या रिमेन था, 9। ठीक है, जो मेरा नेक्स्ट 1 0 10 था ना, उससे मैंने अगेन 1 रुपी बोरो किया और वो मैंने अपने नेक्स्ट वाले 0 को दे दिया, तो वो तो बन गया 10। तो प्रीवियस 1 0 10 क्या हो गया, 9 हो गया, क्योंकि उसने 1 रुपी नेक्स्ट वाले 0 को बोरो दे दिया, सही है। अब जो मेरा थर्ड लास्ट वाला 0 है, वो देखिए, वो दोबारा से 10 बन गया था 1, जब मैंने उसे 1 रुपी बोरो दे दिया था। फिर उसके बाद मैंने उससे 1 रुपी दोबारा से बोरो लिया आखिरी वाले 0 के लिए, तो वो हमारे पास कितने रिमेन हो गए, जब मैंने 1 0 10 से 1 रुपी बोरो किया तो उसके पास 9 रह गए, और लास्ट वाला 0 क्या बन गया हमारा, 1 0 10, सही है। नाउ वी हैव टू सब्ट्रैक्ट। अब हम क्या करेंगे बेटा, सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 0 10 में से। मुझे ये 10 कैसे आया वो मुझे अभी तक। मरियम मैंने बोरो करा है, आप देखो मैंने कटिंग की हुई है, हर 0 को मैंने कट करते हुए बोरिंग की हुई है, आप चेक करो ना, स्क्रीन देखो, मैंने कटिंग की हुई है। Okay. Now student we have to subtract 4 from 10, so the remaining number is 6. हमारे पास 6 remain है। We have to subtract 3 from 9, so we got 6 again. When we subtract 2 from 9, we got 7. When we subtract 1 from 9, we got 8. Now the turn to place decimal point. I am placing. After that, I have to subtract 0 from 3. So I got 3. 0 from 3, 3. 0 from 2, 2. And 0 from 1, 1. This is your subtraction, जो कि हमने अर्ली क्लासेस में भी किए हुए हैं। समझ आया। वेरी गुड। जब आप प्रैक्टिकल करोगे ना तो आपको पूरा आ जाएगा, सही है। अब देखिए, अब मैं इससे रब कर रही हूँ और मैं आपको बता रही हूँ कि आप लोगों ने करना क्या है आफ्टर दिस क्लास। वैसे मैं व्हाट्सएप पर जितना मैंने आज सिखाया है वो तो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ हमेशा कॉपी डाउन करके,
सो यहाँ देखिएगा जरा, होमवर्क देखें, क्योंकि आज मैं होमवर्क बहुत ज्यादा दूंगी, क्योंकि हमारे पास बहुत कम दिन बाकी हैं और सिलेबस हमने कंप्लीट करना है मैक्सिमम। दिस इज योर होमवर्क, सही है? दिस इज योर होमवर्क। और किस तरह करना है? लेकिन मैंने तो सारे कर ली। बेटा आपने बाकी किसी के सारे सम्स दे रही हैं। बेटा मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, मैं क्या क्या दे रही हूँ चेक करो। बाकी के सारे सम्स दे रही हैं आप बच्चे में। जी जी जी, रिमेनिंग दिस। अब यहाँ देखिएगा बच्चों, यहाँ देखिएगा। जीके का जो काम करवाया था। Listen, this is not GK block right now. You have to wait, Daniel. Wait. Question number 14. Look at the question number 14, everyone. Subtract 6.8 from 14.2. That means 14.2. हमें subtract करना है 6.8 को 14.2 से। देखिए इंग्लिश को पढ़िएगा, मैथ्स में भी इंग्लिश मैटर करती है। सुनिएगा इंग्लिश। Subtract 6.8 from 14.2. सब्ट्रैक्ट करना है आपने 6.8 को। फ्रॉम का मतलब होता है से। फ्रॉम का मतलब क्या होता है? से। किस में से करना है? 14.2 में से। जब भी आपको मैथ्स में सब्ट्रैक्शन के साथ फ्रॉम नजर आएगा, जब भी आपको मैथ्स में सब्ट्रैक्शन के साथ फ्रॉम का वर्ड नजर आएगा, तो आप पहले क्या करोगे? फ्रॉम के बाद वाले नंबर पहले लिखेंगे और फ्रॉम से पहले वाले नंबर बाद में लिखेंगे। कैसे? सुन लीजिए मरियम एंड इनाया, जब भी सब्ट्रैक्शन में आपको फ्रॉम का वर्ड नजर आएगा, फ्रॉम का FROM, फ्रॉम का वर्ड नजर आएगा, मैं दोनों को कर रही हूँ। फ्रॉम का वर्ड नजर आएगा तो हम फ्रॉम के बाद वाला पहले लिखते हैं। देखिए किस तरह। दोबारा से कर सकती हैं? देखा, वही मैं कह रही थी कि सुन लीजिए। ओके, दोबारा से सुन लीजिए। मैंने कहा जब भी सब्ट्रैक्शन में आपको फ्रॉम का वर्ड नजर आएगा, बेटा मेरे और भी बच्चे जो बहुत ज्यादा स्मार्ट हैं वो भी सुन लीजिए। सारे बच्चे सुनिए। अली मेहदी, व्हाई आर यू पैकिंग योर बैग? लुक एट योर स्क्रीन। जब भी सब्ट्रैक्शन में फ्रॉम का वर्ड आपको नजर आएगा, फ्रॉम का वर्ड नजर आएगा, देखिए मैं स्क्रीन पर लिख रही हूँ फ्रॉम, सही है? सही है, फ्रॉम का वर्ड नजर आएगा तो फ्रॉम के बाद वाला जो हमारे डिजिट्स होंगे ना वो हम पहले लिखेंगे, सही है? और जो पहले वाले होंगे